So in today's class, we are going to learn how to find out the particular integral or the particular solution of a linear differential equation with constant coefficient. We know that the general form of linear differential equation with constant coefficient is what? F of dy is equals to capital X, where capital X is not just an ordinary variable, it is a function of X. And F of d, you all know that, right? So its complete solution is given by what? Is equals to yc plus yp, where yc stands for complementary function. We saw how to find out complementary function, but now we will see in today's class, we will see how to find out the particular solution. Okay, the half part we know how to calculate. The remaining part will understand how we should calculate. Okay, how we are going to calculate it. Okay. Yes, ma'am. All right. So how many methods I told you are there to find out the particular integral? There are three methods: general, short, and method of variation of parameters. So today, hopefully, we will complete general method. Okay, so I will just focus on the general method. Okay, so let us understand what is general method. So before we proceed ahead with the general method, we need to understand what is particular solution. Okay. So as I told you, what is the form of differential equation? Linear differential equation with constant coefficient f of dy equals to capital X. Now, particular integral means what particular value we are going to substitute in place of y, which will satisfy my differential equation. So what do you think? What did I tell you that what you should substitute in place of y? X upon f 1 upon f of d. Yes, 1 upon f of d into capital X. Okay, so this will get cancelled and you'll be left with capital X, which is equals to right hand side. So particular integral is very simple. It is what? Particular integral is equals to, we denote it by p. And what we got, particular solution हमें क्या मिला? It is 1 upon f of d into capital X, where capital X is function of X only. But इतना simple नहीं है. बस आपने ये रख दिया मैम, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में f of d रहेगा उसका रेसिप्रोकल ले लो, कैपिटल X से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया. ऐसा नहीं है. ओके, बिकॉज सोल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सपोज अगर मैं आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूं, दिस माय डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, मैं आपको बोलूं कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, सो आप मुझे ये बोलोगे क्या? 1 अपॉन p इज इक्वल टू 1 अपॉन f of d क्या हमारा ये 3d plus 2 into e raised to x. Are you going to tell me this? Is this going to be our final answer? No, ma'am. No, ma'am. Why this cannot be our final answer? Why? आगे का भी देखना. Because the solution होता है स्टूडेंट्स, उसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है क्या? नहीं मैम. डेरिवेटिव नहीं रहता है, राइट? बट हियर यू कैन सी क्लियरली, यू नो कि d is there. d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर. दिस इज देयर. सो दिस, तो इसको आगे भी आपको सॉल्व करना होगा. You cannot say simply no 1 upon f of d capital X is going to be a particular solution. No, you have to solve it further. But अब इसको आगे सॉल्व करेंगे कैसे? Do you have any technique, any idea? ये 1 upon derivative आ गया. So we don't know, right? So there are different methods we have to solve 1 upon f of d capital X. ये जो है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के different techniques है हमारे पास. The first one is general method. The second one is short method, and the last one is the method of variation of parameters. So today we will see the first method, that is general method. Okay, so बहुत easy है students, but provided you all pay attention and you understand, and if you in case you know not getting this thing, you can ask me. Okay, shall I start with the general method now? So all of you have understood what we are going to do on this? Yes, ma'am. All right. Okay. Yes, ma'am. So general method. So केस नंबर 1 ले लेते हैं. जैसे हमने देखा था ना, रूट्स अगर डिस्टिंक्ट हुए, रूट्स डिफरेंट हुए, कॉम्प्लेक्स हुए तो कैसा होता है. सिमिलरली हियर आल्सो यू नो केस के अंदर केसेस रहेंगे. सो सी हियर, सपोज आपका f ऑफ d क्या है बच्चों? सपोज आपका f ऑफ d क्या है? d है ना. डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? इट इज f ऑफ d y इज इक्वल्स टू कैपिटल X. मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका f ऑफ d क्या है? d है ना. d का मतलब क्या होता है? dy by मतलब क्या होता है? d by dx. करेक्ट. ओके, ना अगर मैं आपको नहीं बताऊं कि आगे क्या करना, तो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप क्या करोगे आगे? ये कैपिटल X फंक्शन ऑफ X ओनली. ये फंक्शन ऑफ X, दिस इज नॉट अ वेरिएबल. चलो मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि आगे क्या करना है. व्हाट डू यू थिंक, यू नो कि व्हाट शुड बी डन फर्दर टू गेट सॉल्यूशन?
dx को दूसरी Separate तरफ ले जाके दोनों तरफ। Very nice, Pradyuman. So you will take dx on the other side. So you will get this. Okay. So क्या हो गया? Variable separate हो गया. Now what you will do next? इंटीग्रेट करेंगे. Yes, very good. We will integrate. So integrate dy and integrate here also. Okay. So इधर क्या है? one का integration with respect to y क्या हो जाएगा? y, and this is going to be a integration. जो भी हमारा जो function रहेगा उसको हम integrate करेंगे ना. We don't know that function. So we have just denoted it by capital X. So you will keep capital X as it is. Don't tell me कि मैम x square by 2 होगा. Are you going to tell me that it is going to be x square by 2? No. No. No, it is a function. So do not tell me, it is going to be x square by 2. Okay, because it is a function. This function can be anything. Okay, dx. So ये हो गया हमारा particular solution. देखा कितना easy है. तो ये पूरा चीज हमको करने की जरूरत नहीं है. तो इससे हमें फॉर्मूला क्या बनता है मिलता है स्टूडेंट्स. वी नो दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है. इट इज 1/f(d) x, है ना. वी नो दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है 1/f(d) x. f(d) की जगह मैंने क्या रखा है d. अभी 1/d मतलब रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव. रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव क्या मिला हमको इधर. यस और नो. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड क्या हुआ इधर. Yes. ओके तो जब आपका f ऑफ d क्या रहेगा d, दैट इज 1/d है. दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ d. सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा. इट इज इंटीग्रेशन. तो देख रहे हो आप इधर इंटीग्रेशन आया. और मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ कि मैम आप अपने मन से कैसे बोल रही हूँ. इधर देखा ना अभी आपने कैलकुलेशन देखा पूरा इधर. जस्ट नाउ यू सॉ कैलकुलेशन ओवर हियर. सो 1/d क्या होता है. इट इज इंटीग्रेशन. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन वापस से करने की जरूरत नहीं है. ये वेरिएबल को सेपरेट करो, ये वो करो, फिर इंटीग्रेट करो. नो, सिंपली यू नो दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है. इट इज 1/f(d) कैपिटल X. तो 1/f(d) की जगह पे क्या रखा d. तो ये 1/d हो गया. 1/d का मतलब क्या होता है. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव. एंड रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है. इट इज इंटीग्रेशन. तो आपको सिंपली क्या करना होगा. राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना होगा एंड यू विल गेट द आंसर. इज दिस केस अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. Okay, shall I go to the next case? See, मैं अगर चाहती ना तो आपको डायरेक्टली बिकॉज जो हम यूज करेंगे इसमें इसी फॉर्मूला यूज करेंगे. ये डेरिवेशन का जरूरत ही नहीं है. बट मुझे लगता है कि डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली फॉर्मूले को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट केस. केस नंबर 2. तो याद रखो जब भी अगर हमारा f ऑफ d क्या रहेगा d, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा. बताओ जरा क्विकली टेल मी. पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा. Capital X. Integration of capital X dx. Very nice. Capital X Your video has got switched on. बंद कर दिया है. मेरा ही ऑन हो गया था गलती. All right. Now next case 2. Now case 2 suppose मेरा f of d क्या है d minus a, है ना. हम फैक्टर्स निकालते हैं. हमको अगर ऐसा दिया रहता है तो हम क्या निकालते हैं. फैक्टर्स निकालते हैं ना. d minus suppose 2 हो गया, d minus 1 हो गया. ऐसा फैक्टर्स निकालते हैं ना. तो मैं एक ही सपोज मेरा फैक्ट जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है. दो फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है. दो फैक्टर वाला केस भी हम लेंगे बट वो थर्ड केस होगा हमारा. सपोज हमारे पास क्या एक ही फैक्टर है दैट इज d minus a. तो देखते हैं कि इसमें हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिलता है. ओके, पे अटेंशन. आपको आप भूल जाओ, पहले हम फॉर्मूला समझ के ले लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. बिकॉज अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है ना स्टूडेंट्स, तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो. तो आप फॉर्मूला समझ के लो. अगर फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम आता है यू शुड स्टॉप एंड यू शुड आस्क मी. जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा विल नॉट प्रोसीड अहेड, बिकॉज फॉर्मूले पे ही सब डिपेंडेंट है हमारा. तो व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज मेरा f ऑफ d क्या है d minus a. कोई भी फैक्टर हो सकता है. d minus 2 हो सकता है, d minus 1 हो सकता है. तो a कैन बी एनी कांस्टेंट. ओके, इट कैन बी एनीथिंग. So let us see कि इसके लिए हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा. तो अगेन आई विल टेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज दिस इज अ फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. f ऑफ d की जगह पे क्या रखेंगे d minus a. y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट आई विल गेट dy minus ay इज इक्वल्स टू कैपिटल X. देन d क्या होता है. इट इज dy by dx. करेक्ट है. सो फार अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू. Yes students. Yes, ma'am. ठीक है. Now next. Now what Yes, you can ma'am. say about this form. ये फॉर्म पहले भी देखा क्या आपने. What is this form called? जरा ऑब्जर्व करो एंड टेल मी कि वेयर हैव यू सीन दिस फॉर्म. ये कौन सा नाम फॉर्म. भूल गया. वो p minus ay. अब नाम में भी
एक सेकंड नाम याद. Think over it. हेलो, किसी को पता चला ये कौन सा फॉर्म है? Am I audible, students? हेलो, Yes ma'am, you are audible. ओके, तो ये कौन सा फॉर्म है? इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे चलेगा स्टूडेंट्स? अरे अभी What ऊपर ही answer तो in the पढ़ा chat था. box? This is general form of linear differential equation. Very good, Harshini. Okay, so yes, it is a linear differential equation. You all remember that we used to write dy by dx plus py is equals to q. Remember Yes that? Yes, ma'am. ma'am. Yeah. So compare this with what is p and q. P is what? Minus a, and q Minus is A. capital X. No. Sir. So how we used to solve this differential equation? If any one of you remember this, हम कैसे निकालते थे सॉल्यूशन, कैसे निकालते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? इसके बाद हम क्या निकालते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नो, याद ही नहीं कैसे चलेगा. What was the formula of integrating factor of linear differential equation? It was e raised to integration of p dx. Whose mic is on? Please turn it off. Now we'll substitute for p. What I will get? Minus a dx. Now minus is constant. Take it out. Integration of a dx. What is integration of a? Oh sorry, a is also constant. No, तो वो भी हम बाहर रखेंगे. That also I will keep out. Okay. So क्या मिलेगा हमको? बचा अंदर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज x. X. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला स्टूडेंट्स हमें? e raised to minus ax. a क्या इधर? a कैन बी एनी कांस्टेंट. ओके, वो कहां से मिलेगा? a f of d से मिलेगा. ओके, Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम क्या लिखते थे? सॉल्यूशन. नो, व्हाट वाज द सॉल्यूशन? It was y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor. Can you all recollect this? Hello. Yes, ma'am. हाँ, yes नो बोलोगे तो I'll come to know कि नहीं कि आप लोग मुझे सुन रहे हो. ठीक है. Now y. अभी now you put the values. Integrating factor क्या मिला हमको? e raised to minus E a raised to minus A. is equals to integration of q into e raised to minus ax. What should I do next? मैम हम लोग जो UV रूल लगाते हैं. Your voice is breaking, Pradyuman. U into V rule लगाएंगे मैम. एक मिनट रुको. So ये e raised to minus ax है. ठीक है, इसको कैन आई राइट दिस वे 1 upon e raised to ax. Yes, ma'am. इसको तो आप इंटीग्रेट, तो आपको जब तक ये क्यों नहीं पता तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? ठीक है, सो इसको हम तो ऐसे ही रखेंगे. अभी e raised to x को इधर लेके जाते हैं बिकॉज हमको y चाहिए ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए. तो y क्या हो जाएगा? इट विल बी e raised to ax इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus ax dx. समझ में? आप सॉरी क्यों कहाँ चला गया? सो क्यू मैम एक बात बोलूं. यस बोलो. हेलो, एम आई ऑडिबल? मैम ये Q की जगह X नहीं होगा हाँ रखा ना इधर, देखो इधर रखा. क्योंकि हम लोग तो Q की जगह Pradyuman, your Why voice is is breaking. Pradyuman, you get in network area, please. Yes ma'am. Yes ma'am.
सो स्टूडेंट्स, जब हमारा एफ ऑफ डी क्या था, इट वाज डी माइनस ए, ठीक है। जब हमारा एफ ऑफ डी क्या था, डी माइनस ए, तो हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिला स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिला हमें? e raised to ax इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एक्स e raised to माइनस ax dx। समझ में आया? तो ये देख सकते हो कि आपको क्या करना होगा जब आपका क्या होगा, एफ ऑफ डी क्या होगा, इट इज डी माइनस ए। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। एफ ऑफ डी क्या था हमारा, इट वाज डी माइनस सी। तो इसका हमने सॉल्व किया तो हमको सोल्यूशन क्या मिलता है, हमको सोल्यूशन मिला ये, जस्ट राइट ओवर हियर, e raised to ax इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एक्स e raised to माइनस ax dx प्लस सी। तो स्टूडेंट्स, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हमारा एफ ऑफ डी क्या होगा, डी माइनस ए होगा, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज e raised to ax। इधर माइनस रहेगा तो इधर क्या आएगा, e टू द पावर प्लस ax, अंदर क्या आएगा, e raised to माइनस x। याद रखो बच्चों, ये बाहर है इंटीग्रल के लिए, तो इसको अंदर ले जाकर उसको इंटीग्रेट करने का ट्राई मत करना, बिकॉज इट इज आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल। तो इसको कुछ भी करना नहीं है, यू विल कीप इट एज इट इज, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस थिंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है, तो जरा बताओ, अगर मेरा एफ ऑफ डी, चलो एक एग्जांपल में देती हूँ, आप बताओ कि क्या हो जाएगा। सपोज मेरा एफ ऑफ डी है डी माइनस वन, ओके। सो बताओ वाईपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? e raised to a हाँ बताओ, e raised to क्या लिखूं इंटीग्रेशन मैं? ऑफ 1 ए कितना है, e 1 raised है to ना, 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अंदर फिर इनसाइड ऑफ द इंटीग्रल क्या आएगा, कैपिटल एक्स इंटू ई टू द पावर, माइनस ए करेक्ट। नहीं ठीक है, तो minus बस आप इसको इंटीग्रेट करोगे एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन। चलो एक और बताती हूँ, पूछ रही हूँ, बताओ। सपोज मैंने एफ ऑफ डी है डी माइनस थ्री, तो इन दैट केस वाईपी क्या हो जाएगा? वाईपी क्या होता है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। एफ ऑफ डी क्या रखते हैं हम, डी माइनस थ्री रखना, ठीक है। बताओ आगे क्या लिखूँ मैं? e raised to minus 3x, oh, e raised to 3x करेक्ट। integration of x into e integration of raised to x minus into 3x plus c। इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है? yes ma'am, ओके ना, अगर जरूरी है कि हमेशा हमें d माइनस वन ही फैक्टर मिले, वी कैन गेट अ फैक्टर ऑफ लाइक d प्लस वन ऑल्सो ना। व्हाट इफ माय फैक्टर इज, what if my factor is like this, d f of d equals to d plus a? So in that case, what you will say about particular integral? तो क्या लिखोगे? जब हमारा इधर माइनस थ्री रहता है तो हम इधर क्या लिखते हैं, प्लस रहता है। अब इधर प्लस है तो इधर क्या लिखोगे, e raised to -3 माइनस ax इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल x। तो अगर इधर माइनस है तो अंदर क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू कि कब प्लस और कब माइनस डालना है? यस मैम। yes ma'am, समझ। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल देती हूँ, जरा बताओ। ये सपोज मेरा एफ ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ डी इज डी प्लस 4। तो एफ ऑफ डी क्या, सॉरी वाईपी क्या हो जाएगा, वाईपी क्या होता है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी कैपिटल एक्स। बताओ व्हाट शुड आई e राइट? raised to 4x 4x आएगा, minus 4x माइनस 4x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल x एक्स into इंटू e raised to 4x। e raised to 4x dx plus c। आई होप ये कैसे यूज करना है सभी को समझा है, ये दो केस सभी को समझे है क्या? Is this two मैम। cases understood? फर्स्ट केस तो कुछ नहीं है, अगर आपको दिख गया कि 1 अपॉन डी है तो 1 अपॉन डी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ होम x, और अगर 1 अपॉन डी माइनस ए रहेगा तो क्या करना होगा, e raised to ax लिखोगे एंड देन कैपिटल x into e raised to माइनस ax है। अंडरस्टूड? अगर 1 अपॉन डी प्लस ए रहेगा तो e raised to माइनस ax, यस। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x। अगर ये तीनों केसेस आपको क्लियर है क्या? हेलो मैम। हाँ बोलो। कैपिटल x की जगह क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू मतलब सॉरी क्या? कैपिटल x जो है हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, उसकी जगह क्या अगर कोई वैल्यू दे सकते हैं उसमें? वैल्यू नहीं होगा ये, वो फंक्शन ऑफ x है भाई। यस फंक्शन ऑफ एक्स है बच्चा, देखो इधर लिखा है वो मैंने। समझा
यू वही मीन टू से समझा कि मैं भाभी। कोई और वेरिएबल ले लूं ऐसा? यस मैम। ओके ठीक है, क्यू ले लेते हैं, क्यू इट्स अंडरस्टूड नो, क्यू क्या रहता है? हेलो, क्यों रहता है फंक्शन ऑफ एक्स हाँ ही। ठीक है, तो आई टेक दैट ओनली। ओके, पर अभी सारा डेरिवेशन मैंने कैपिटल एक्स में बताया, तो कैपिटल एक्स से अंडरस्टैंड करके लो, ठीक है? अदरवाइज इसलिए आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वेरिएबल एक्स, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, मैम फंक्शन ऑफ एक्स में क्या देते हैं अपन, जैसे साइन एक्स देते हैं ऐसा कुछ? ये साइन एक्स होता है, ई रेस टू एक्स होता है, एक्स स्क्वायर होता है, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स होता है, 5 रेस टू एक्स होता है, तो ये सब क्या फंक्शंस है। ओके, यस मैम। अभी हमने ऊपर देखो कितने सारे क्वेश्चंस लिए थे ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे, तो ये देखो साइन 2x, दिस इज कैपिटल एक्स। हमारा फॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स नो, तो ये पार्ट तो एफ ऑफ डी हो गया, ये राइट हैंड साइड क्या होता है, कैपिटल एक्स होता है। ओके, कैपिटल एक्स क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो साइन 2x 5 रेस टू एक्स माइनस ये भी क्या हो गया हमारा, कैपिटल एक्स हो गया। अंडरस्टूड नाउ? यस, उसको इंटीग्रेट करेंगे ना बाद में। यस यस यस, करेक्ट, वही तो कर रहे हैं हम। बट डिपेंडिंग ऑन दी केसेस कि आपका कौन सा केस है। अभी तो हमने कितने केस देखे हैं जनरल मेथड में, फर्स्ट केस, सेकंड केस और ये थर्ड केस, ठीक है? एक और केस है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम से। पहले ये बताइए तीनों केसेस आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. विल गो टू द लास्ट केस, बट वो लास्ट केस किस पर डिपेंडेंट है बच्चों, सेकंड और थर्ड केस पर डिपेंडेंट है, ठीक है? बहुत ईजी है वो भी। अभी हम जब फैक्टराइज करते हैं, हमें जो एफ ऑफ डी रहता है, एफ ऑफ डी दिया जो रहता है, वो कैसा आता है, वो ऐसा आता है ना। अब ये क्वेश्चन तो आपकी तरफ से आना चाहिए कि मैम व्हाट इफ अगर हमारा एफ ऑफ डी क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, है ना? ऐसा आता है ना हमें, Yes, ma'am. यस मैम। करेक्ट। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। डू यू नो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड? अच्छा ठीक है, डर मत जाओ, आई एम नॉट स्केयरिंग यू ऑल, आई एम जस्ट आस्किंग। अगर नहीं पता तो बोलो नहीं पता है, कोई बात नहीं। क्या जो मैम? नहीं पता। वो भी नहीं बोलना है, वो भी नहीं बोलना है ना। तो जरा देखो, बोल तो दिया ma'am. सपोज आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, ठीक है? और आपको निकालना है, आपको एफ ऑफ डी क्या मिला, डी माइनस ए डी माइनस बी मिला है। ओके, अभी फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन एफ ऑफ डी कैपिटल एक्स, ये होता है, ये तो हमको पता है। एफ ऑफ डी क्या मिला हमको, इट इज डी माइनस ए डी माइनस बी, ठीक है? दिस इज इनटू कैपिटल एक्स मतलब क्या, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, ना अगर आपको नहीं पता है पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आप क्या करोगे, पहले इसको साथ में लोगे, ठीक है? तो अगर मैं इस चीज को साथ में लूं तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, व्हाट शुड आई राइट? फॉर्मूला अप्लाई करो। अभी केस 1 केस 2 देखा हमने, सॉरी केस 1 से लेकर केस 3 तक देखा। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, Yes, आगे क्या होगा ये बताओ? ये x by d d हाँ, मैम, ये तो होगा हमारा e raised to यस, ax ए की जगह पे नहीं क्या bx लिखोगे, बी एक्स, b बी करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ, integration of x कैपिटल एक्स इंटू to e e रेज raised to टू minus bx. माइनस डी एक्स प्लस समझ में आया? व्हाट डिड आई डू ओवर हियर? यस मैम। हाँ मैम. जो आपने ऊपर फॉर्मूला दिखा है वो फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ठीक है? अभी ये कुछ सॉल्व करने के बाद अगेन यू विल गेट सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x ओनली, सो लेट इट बी x1, कैपिटल x1। सबको क्या मिलेगा, d माइनस ए इंटू कैपिटल x1। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, Yes, ma'am. क्या होगा आगे? e raised to ax integration of x into e raised to minus b. x लिखोगे कि x1 लिखोगे? x1. समझ में आया वो कि? तो ये फॉर्मूला पे कितनी बार अप्लाई किया इधर? 2 बार. 2 बार। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है इधर? इससे ही कहते हैं थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग कहते हैं इसे। तो जरा सोचो कैसे अप्लाई हो रहा है, लॉजिक थोड़ा अप्लाई करो।
तो हमने क्या किया, वी वर हैविंग टू फैक्टर्स d माइनस ए d माइनस बी, तो पहले मैंने एक ही फैक्टर को लिया और वो फॉर्मूला जो हमको पता है एक फैक्टर के लिए तो फॉर्मूला पता है ना, वो फैक्टर के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो आप उसको सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करने के बाद कुछ तो फंक्शन मिलेगा, लेट इट बी कैपिटल X1, ठीक है। देन अगेन यू विल बी अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस, अगेन वो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आपने कितने बार फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 बार, ठीक है। बट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सो लेट अस सी अंडरस्टैंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो क्या था, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड, दिस वाज बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब क्या, जो आपने इंडिविजुअली अप्लाई किया, ठीक है, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। नाउ अभी हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ऑब्वियसली हम ये पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करेंगे, वो डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में आपको डिटेल में समझाऊंगी इन यूनिट 3। एज ऑफ नाउ यू ऑल जस्ट रिमेंबर फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट डिड आई टेल यू ऑल, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आई विल एक्सप्लेन यू इन यूनिट 3 बिकॉज उधर वो नीडेड है, उधर अलग ही टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का। एज ऑफ नाउ ये याद रखो कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर रहता है d माइनस ए d माइनस बी, ठीक है, एंड मुझे इनको स्प्लिट करना है, मतलब d माइनस ए एक अलग टर्म होना चाहिए, d माइनस बी एक अलग टर्म होना चाहिए, राइट। सो हाउ आई कैन डू दैट, द फॉर्मूला इज 1 अपॉन, हेलो हेलो मैम कुछ नहीं, वो प्रतीक के मुंह। ओके, सो व्हाट डिड आई टेल यू कि अगर मुझे मेरे टर्म्स, मेरे डिनोमिनेटर के टर्म्स क्या ऐसे है, मल्टीप्लाइड है ना साथ में, तो उनको मुझे सेपरेट करना है, अलग करना है, तो मैं क्या करूंगी, आई यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इंपॉर्टेंस है। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या कर सकती हूँ, डिनोमिनेटर के टर्म्स को क्या कर सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ, तो कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट कैन टेक, यू नो, अगर मैनुअली करें तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, बट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको फटाक से आंसर मिल सकता है, एंड यू नो बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है कि आपकी क्या हो मिस्टेक्स है उसके अंदर, ठीक है। बट अगर आप मैनुअली करो, मैनुअली भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैनुअली नहीं हो सकता। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर, अगर आपको पता है कि ये स्प्लिट करना चाहिए, इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, देन यू कैन डू दैट, मैनुअली भी हो सकता है। बट अगर यू डोंट नो कि कैसे स्प्लिटिंग पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू राइट यू नो d-1 और ये d-2 है, मुझे इनको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है मतलब आई वॉन्ट टू राइट लाइक दिस, ठीक है। तभी स्प्लिटिंग करेक्ट है, रॉन्ग है, इधर प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, आई डोंट नो। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, विल आई गेट दिस टर्म अगेन, लेट्स सी दैट। सो d-2 आएगा, इधर क्या हो जाएगा, d-1 हो गया अपॉन d-1 d-2 हो गया, ठीक है। तो ये डी तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, और इधर न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो मतलब बेसिक पक्का इधर प्लस नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, बिकॉज माइनस होगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, डी विल गेट कैंसिल, और ये -2 + 1 है तो ये हो जाएगा -1 अपॉन d-1 d-2। बट स्टिल ये करेक्ट है क्या एडजस्टमेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपको, यस मैम। ठीक है। तो बट स्टिल ये माइनस आ गया, बट इधर तो प्लस है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। तो व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई विथ -1, तो ये -1 कैसे आएगा, 1 - 2 कर दो, तो यही लिखा है ना मैंने फॉर्मूला, ए क्या इधर इधर 1, बी क्या था इधर 2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। समझ में आया बच्चों कि कैसे करना है इसको, स्प्लिटिंग का क्यों करना है स्प्लिटिंग हमें, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर समझा तो ठीक है, अदरवाइज यू ऑल कीप द फॉर्मूला इन योर माइंड दैट क्या होता है, अगर d-b है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a-b, ए और बी कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, ठीक है। एंड देन क्या हो जाएगा, बीच में माइनस लिख दो। व्हाट इफ यू आर हैविंग टर्म लाइक दिस, d + a d + b, then in that case what you are going to write, ऐसे भी तो टर्म्स आ सकते हैं ना, d + a d + b, so what you will write, a और b क्या हो 1 जाएगा, upon a plus b। 1 अपॉन a a प्लस plus b ब्रैकेट में a + b हो जाएगा। think स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ सो दैट कि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ, तो कैन आई राइट दिस में d माइनस, इस तरीके से चलेगा क्या, b minus a, तो अब बताओ फॉर्मूला Yes, क्या हो ma'am. जाएगा, अब बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 upon b minus a 1 अपॉन b - a, करेक्ट करेक्ट।
मैंने तो पहले हमारे उसमें बता दिया था जब गलत आपने बोला। और ये क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आया? तो ये d माइनस Yes. ए जब लिख रहा था तो हम इधर लिख रहे थे a माइनस बी नो, बट इधर क्या है d माइनस माइनस क्या है, माइनस a इज देयर, सो माइनस a लिखा, देन माइनस साइन फॉर्मूले का, एंड देन सेकंड वाला क्या माइनस b, से क्या हो जाएगा माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो अल्टीमेटली क्या आएगा आपको 1 अपॉन b माइनस a आएगा, और ब्रैकेट वाला ये तो एज इट इज ही रहेगा d प्लस a माइनस b प्लस, ओके Yes. यस मैम। तो अब देख सकते हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इधर, जब d प्लस ए डी प्लस ए डी प्लस बी होगा तो b माइनस ए हो जाता है, और माइनस रहेगा तो a माइनस बी रहेगा, और ये एज इट इज रहेगा। Okay, now next, what if you are having term like this, then in that case क्या लिखोगे, कैसे स्प्लिट करोगे? हो सकता है ना सारी पॉसिबिलिटी में ले रही हो और कुछ नहीं। मैम 1 B अपॉन plus में B को a split प्लस करेंगे बी, मैम। 1 अपॉन a प्लस बी हो A जाएगा, plus B. वेरी गुड हाँ, और ये इनसाइड वाला टर्म Yes. क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ओके इफ यू हैव अंडरस्टूड शैल आई प्रोसीड? समझे मैम? ओके यस ये मैम। तो मैंने आपको बताया कि स्प्लिटिंग करने का, ठीक है। चलो अभी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का तो अभी देखा ही नहीं है, डिस्कशन केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपका एफ ऑफ डी क्या है, इट इज लाइक दिस, डी माइनस ए डी माइनस, मुझे निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, वाईपी निकालना है। वाईपी का फॉर्मूला आप सबको पता है कि क्या होता है, इट इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, ठीक है। एफ ऑफ डी क्या है मेरा, इट इज डी माइनस ए डी माइनस बी। अभी मुझे पता है कि केस 1 केस 2 से फॉर्मूला मुझे सिंगल फैक्टर्स के लिए पता है कि कैसे यूज करना है, बट ये तो मल्टीप्लाई हो गया साथ में, मैं क्या करूं इसको, मैं कैसे अलग कर सकती हूँ दोनों को? फॉर्मूला अप्लाई करो अभी पार्शियल फ्रैक्शन का, क्या पढ़ा हमने, इट इज 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन डी माइनस ए माइनस 1 अपॉन डी माइनस बी, करेक्ट है? यस मैम। ये कैपिटल एक्स को मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म से, तो ये तो कांस्टेंट ही मिलेगा ना, तो इसको बाहर ही रखेंगे हम, ये हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस ए कैपिटल एक्स माइनस 1 अपॉन डी माइनस बी कैपिटल एक्स। अभी तो इजी हो गया ना फॉर्मूला अप्लाई करना, यस और नो? यस मैम। अभी बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट शुड आई राइट नेक्स्ट? e raised to ax integration of e raised to minus ax dx plus yes c dx, then minus ये क्या हो जाएगा, e raised to bx, e raised to E raised to bx bx. integration of yes, I hope this is understood to all of you. Yes. yes ma'am. Okay, shall we begin with the problems now? Yes मैम। ठीक है, तो Yes, हमने ma'am. क्या, तो चलो देख लेते हैं एक क्विकली। सो ये जरा बॉक्स वाला फॉर्मूला देख लो एक बार, बॉक्स वाला फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, लास्ट वाला केस भी आपको समझ में आ ही गया होगा। So just see this and then we'll start with the problems in next 1 minute, okay? Okay, now we shall start with the problems. पार्शियल फ्रैक्शन का भी एक बार देख लो, स्प्लिटिंग का फॉर्मूला क्या मिला हमको, वेयर वाज इट, देखा तरीके से ये भी देख लो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। Only these two are important. If this is understood to all of you, then we can easily solve problems on this. I'm sorry. Okay, now let us start with the question number 1. I think जितना time है हमारे पास उसमें एक question हो जाएगा easily. Okay. So question number 1. हम वैसे तो हम complete solution नहीं निकालेंगे because हमने complementary functions तो देखा है कैसे निकालते हैं. Okay.
Now we'll just look at how to find out the particular solution. All right, students, you understanding what I am talking about? अभी Yes, मैं ma'am. जो आपको क्वेश्चंस दूंगी उसका Yes, कंप्लीट ma'am. सोल्यूशन का भी आपको पता है पूरा तरीका. yc plus yp होगा. yc हम नहीं करेंगे because already we have seen how to calculate yc. We'll just calculate the next part, that is yp of it. I'll take the same question So, only ma'am- which I had given you all for calculating the complementary function. The first question which I had given you all, that was this: solve d square plus 3d plus 2, 3d plus 2 y is equals to e raised to x. This was the first question which I had given you all. So let us solve this question. Okay, we'll solve it together. Okay, चलो क्या निकालना है हमको इसका? What I have to find out? yp निकालना है. Very good. So first of all, it is of which form? It is f of d. देखो एग्जाम में स्टूडेंट्स अगर d एंड ऑल आपको दिखा है तो आपको पता है कि d आपने कहाँ पे देखा है? सिर्फ चैप्टर 3 में देखा है. चैप्टर 3 में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन. तो ये सारी टेक्निक्स है टू रिमेम्बर कि कैसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ नेक्स्ट अब क्या निकालेंगे हम? सो व्हाट इज f of d and what is capital X over here? What is f of d? D square plus 3D plus 2. D square plus 3D plus 2. Okay, students, you all calculate, this complementary function for the same. I'll give you 2 minutes. Just calculate f of d for the same. Hello, students, did you all calculate complementary function? एक मिनट काम हो गया. Okay. Okay. Okay, see here, f of d is what over here? It is d square plus 3d plus 2. Okay. So what if what do I know need for particular solution? It is 1 upon f of d capital X. No. So f of d को जरा factorize करते हैं because we need factors. No. So d square plus 3d plus 2 का factor क्या मिलेगा? Is it d plus 1, d plus 2? Is it correct? Yes, ma'am. Yes. ma'am. और capital X क्या है? Yeah. And we did capital X also. No, so it is e raised to x. Okay, so pay attention over here. Everyone stop doing and pay attention how we are going to find out the particular solution. 1 upon f of d क्या मिला हमें? d plus 1, d plus 2. और ये क्या है? e raised to x. Now you understanding who was asking me कि capital X क्या होता है? So capital X क्या हो गया? It is e raised to x. Okay. Now you know what you have to do next. Tell me क्या करोगे? अभी d plus 1, d plus 2 है. I want to separate them. So Okay, one- हाँ, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताओ. 1 upon a plus नहीं b minus a. हाँ, so क्या होगा? b क्या और a क्या इधर? 2 minus 1. Yes, it is 2 minus 1 हो जाएगा. ठीक है. Then अंदर बाकी ब्रैकेट में अपना क्या आएगा? 1 formula. upon d plus 1 minus 1 upon d plus 2. This is understood? e raised to Yes. x. Next. अभी 2 minus 1 कितना होता है? 1. तो 1 तो चला गया. नो प्रॉब्लम. ये e raised to x को ना मल्टीप्लाई करते हैं.
So what I will get 1 upon d plus 1 into e raised to x minus 1 upon d plus 2 into e raised to x. Now I'll just write on the reason also कि मैंने कौन सा फॉर्मूला इधर यूज किया है 1 upon d plus a into d plus b को I can write it as 1 upon d minus a into 1 upon d minus a so that कि बच्चों को समझे कि हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में. Okay, is this clear? Yes, ma'am. Now अभी इसके आगे क्या समझा. करेंगे जरा बताओ. What I'll do after this? Formula बोलो. ठीक है. e raised to e raised to minus minus x. अब बताओ. E raised to minus x. Minus x, correct. Integration of e raised to x मतलब e raised to x into e raised to ये हो minus गया. plus x. माइनस क्यों आएगा? नहीं माइनस Plus नहीं आएगा. प्लस आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अभी सेकंड वाले के लिए बताओ. minus ये तो हो गया फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट टर्म वाले के e raised to e raised e to raised to minus 2x integration of e raised to x into e e raised raised to to 3x plus ठीक है 2x. ना. वो अभी कैसे करोगे? अभी याद रखो बच्चों, गलती से भी ये बाहर वाले इंटीग्रल का अंदर से अंदर मत डाल देना इंटीग्रल के. बट दे आर आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल. कीप देम आउट ओनली, डू नॉट टेक देम इनसाइड. ना अभी इसको इंटीग्रेट करना. हाउ विल यू इंटीग्रेट इट? डोंट टेल मी यून टू बी रूल लगाओगे. अभी सबको 0 मार्क्स मिलेगा. किसी ने बोला कि यून टू बी रूल लगाओ. ये e raised to x है into e raised to x है. कैसे करूँ अभी आगे? स्टूडेंट्स क्या करेंगे मैं, आप देख सकते हैं कि अगर मैंने e raised to x को t ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैं डिफरेंशिएट करूँ इसको. डिफरेंशिएट करूँ किसको? विद रिस्पेक्ट टू x. तो e raised to x का डेरिवेटिव क्या होगा? e raised to x. और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt by dx. So e raised to x into dx. The e raised to x into dx will get replaced by dt. ये same substitution will apply on this also. Okay, so let's see what will happen. e raised to minus x को कुछ नहीं करना है, छूना नहीं है, टच नहीं करना है. That will be outside. Integration of e raised to x जगह पे क्या रखोगे? yes ma'am t रखोगे into. अब ये e raised to x और dx जगह पे क्या रखोगे? dt रखोगे. देखा अभी तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना इजीली. dt समझ में आया कि मैं एक्सप्लेन करूँ वापस? समझा मैम. ठीक है ना. द सेम यू नहीं मैम सेकंड टर्म समझ आल्सो. गए, पहले भी बताया. Yes, this will be as it is. सेम करो इधर. बट इधर याद रखो, इधर e raised to 2x है, which can be written as ex the whole square, right? No, इधर क्या आएगा? t का स्क्वायर. कौन बताएगा? Before me telling you what will come. e raised to t. ये e raised to 2x को राइट, e raised to x into e raised to x. ओके, सो ये हो जाएगा e raised to t into e raised to x. e raised to x जगह पे क्या आएगा? t आएगा. और ये e raised to x और dx क्या हो जाएगा? हमारा dt हो जाएगा. इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू व्हाट हैज हैपेंड? नहीं समझा तो मैं इधर बताती हूँ. देखो इधर देखो जरा. ये वाला टर्म में इधर लिख रही हूँ. ठीक है, क्या है ये? e raised to x है. e raised to 2x को मैं क्या लिख रही हूँ? e raised to x into e raised to x. और ये dx है. ठीक है, e raised to x हमने क्या लिया बच्चों? t लिया है. ये e raised to x की जगह पे क्या रखोगे? t रखोगे. e raised to x और dx की जगह पे क्या रखोगे? dt रखोगे. आप देख सकते हो कि इधर. नाउ यू ऑल अंडरस्टूड? यस मैम. यस. किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? नाउ नेक्स्ट, अभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली. क्या हो जाएगा नेक्स्ट? e raised to minus x as it is. e raised to t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e raised to t ओनली. तो आप कुछ नहीं करोगे. माइनस e raised to minus 2x. ना अभी इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे?
UV. इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा u into v रूल. तो क्या होता है, इट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बिगर इंटीग्रेशन की दो चीज आती है, इंटीग्रेशन ऑफ v एंड डेरिवेटिव ऑफ u होता है. ओके चलो Yes. u क्या है और v क्या है बताओ इधर. U होगा हमारा T और E हो गया to- करेक्ट. और भी चलो करो, क्या हो जाएगा, u into v रूल अप्लाई करो इधर. आप मुझे बताओ व्हाट शुड आई राइट. e raised to t e raised to into t u t है ना, अरे ठीक से बताओ. t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t होगा माइनस बिगर इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t. समझ में आया व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर. यस मैम t को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, बिकॉज फाइनल आंसर मैंने क्या रहेगा, x में रहेगा. तो t हमने क्या लेता है, इट वाज e raised to x. ओके दिस इज एज इट इज. t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t क्या होगा, e raised to t होगा माइनस e raised to t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to t एंड डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा 1. now this is you are closer to the answer. ये हो गया t into e raised to t माइनस e raised to t का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to t. सो आप फाइनल आंसर में t को रिप्लेस करना ना भूले, इट इज e raised to minus 2x. t की जगह पे रखेंगे e raised to x. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. इज दिस प्रॉब्लम अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? So Yes, ma'am. we'll see more problems in the next class. That's it for